Welcome to our new class. In this chapter, we will be covering about the meaning, then definition of accounting, then what are the objectives or purposes of accounting, then what are the merits and demerits of accounting, then what are the process or functions, like recording and interpreting the information. So from recording to interpreting or to communicating, we will study about all the process. So process or functions of accounting. Then what are the qualitative characteristics of accounting? Qualitative characteristics of accounting. So first start with the meaning of accounting. What is the meaning of accounting? So accounting वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा एक ठो वर्ड आता है? That is recording. Recording of what? Recording of transactions. ट्रांजेक्शन्स यानी कि आप कोई भी अकाउंटिंग वर्ड जो है इट इज़ कंसर्न विद अ बिजनेस फार्म. एक बिजनेस फार्म है, इट इज़ डीलिंग विद कस्टमर्स, इट इज़ डीलिंग विद सप्लायर्स एंड टू मैनी पर्सन्स, डीलिंग विद इन्वेस्टर्स. तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होंगे. ट्रांजेक्शन्स ऑफ व्हाट? ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विल बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर. देन वहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे एंड इंक्लूडिंग दैट classification of the identification of the transaction, classification of the transaction, then summarizing all these things, then interpretation, communication and all these things. So we can understand the meaning of accounting as the recording of transactions of financial nature which further proceeds with identification of the transactions and classification of transaction and summarizing. तो ये identification of transaction and summarizing, classification, so इन सब का जो meaning है हम ये process and functions में समझेंगे. Interpretation, then communication. So let's move towards definition of accounting. So एग्जाम में if you are asked about definition of accounting, so you आपको मेंशन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑथर ने अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन दिया है. सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड, अगर आप ये मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन में, सो इट विल बी मोर मार्क फेचिंग कि किस इंस्टीट्यूट या फिर ऑथर ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया है. सो देयर आर मेनी डेफिनेशंस बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ऑथर्स जो मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड, so accounting principles board defines accounting as a service activity. What? As a service activity. Accounting is a service activity, means accounting, if you will see the profession of accountant, accountant का जो profession है, accountant does not manufacture goods or neither the accountant trades in goods, but the accountant provides the service to the firm. So accounting अगर हम देखें तो accounting को अगर accountant से relate करके देखें, so accounting is a service activity. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है. और नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जो भी है, जैसे कि आपके बिजनेस फार्म कुछ भी है, वहाँ पर कस्टमर्स आए एंड यू बिहेव्ड वेल विद देम, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर रहे हैं. And provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. तो ये जो monetary information है ये किस के बारे में होता है? ये economic
एंटिटीज के बारे में होता है। इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस और फार्म, ये जो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन होता है ये इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस के बारे में होता है। एंड देन ये पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, टू हेल्प इन इकोनॉमिक decisions. So these are the keywords which will help you in memorizing the definition of accounting, and the complete definition by different institutes and author is given in the PDF. So let's move towards the objectives of accounting. Accounting के objectives क्या क्या होते हैं कि accounting हम क्यों practice करते हैं, why we practice accounting, why we practice accounting. So the first objective here is to maintain systematic records. Systematic records, जैसे कि सपोज आपका एक तो ट्रांजेक्शन इट टेक्स प्लेस इन 9 मार्च, 9 मार्च को एक तो ट्रांजेक्शन हुआ, आपने सेल्स किया, 7 मार्च को एक तो ट्रांजेक्शन हुआ था, आपने परचेज किया था। तो ये जो 9 मार्च और 7 मार्च है, आपको 7 मार्च को पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो देयर मस्ट बी सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन। एंड द second objective is so the second function here is to protect and control business properties. तो जैसे कि कोई भी आप सेल्स करते हो, परचेजेस करते हो, तो सेल्स में आपको कैश रिसीव होगा, फिर परचेज में आप कैश आउटगोइंग होगा। तो सेल्स परचेजेस का छोड़ो, सेल्स में जो आप कैश रिसीव करोगे दैट विल बी योर असेट। तो वो एसेट आपका है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होगा वो इस बात का प्रूफ होगा कि वो एसेट आपका है। तो थ्रू दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल योर बिजनेस प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आपको पता भी चलेगा कि आपका जो भी मतलब कि असेट आ रहा है वो कितना, उसका फिगर्स कितना है, किस किस डेट में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट to protect and control your business properties. Then the third one is your to ascertain operational profit or loss, मतलब कि डे टू डे आपका जितना भी प्रॉफिट आ रहा है डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस से, और उसको असरटेन, उसको फिगर आउट करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे फिगर आउट किया जाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके। सो बेसिक चीज़ ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को यहाँ पर कंपेयर कर दिया जाता है डे टू डे, और उसको हम फिर एक पर्टिकुलर मेथड से उसको फिगर आउट कर सकते हैं। देन द फोर्थ वन इज़ योर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो डे टू डे का तो हम ऑपरेशनल प्रॉफिट जान लेंगे, फिर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि एक पूरे साल भर का अगर हम आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन निकालें तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हम जान सकते हैं। जैसे कि असेट्स बैलेंस शीट जो है, अब अकाउंटिंग फर्दर आप पढ़ोगे जब, तो एक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ोगे, बैलेंस शीट। सो विद द हेल्प ऑफ दैट बैलेंस शीट यू कैन नो अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस। देन दी टू असर्टेन द अमाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल्स। तो जितना भी अमाउंट आपको पे करना है अपने क्रेडिटर्स को या फिर डेटर से जितना भी अमाउंट आपको रिसीव करना है वो आप जान सकते हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। टू असर्टेन टू वॉच द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि आप का जो बिजनेस का जो कैपिटल है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल को बस आपने रख दिया, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, बस जो प्रॉफिट आ रहा है उसी से आप री इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो आपको कैपिटल को भी थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज आप करोगे, तो कैपिटल फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन इफ़ द कैपिटल इज सिक्योर और नॉट, तो ये सब भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जान सकते हो। देन टू प्रिवेंट एरर्स, थेफ्ट्स एंड फ्रॉड्स। तो जो भी आप अकाउंटेंट हैं या फिर पर्सन्स इन्वॉल्व हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, उनसे जानबूझकर
थेफ्ट या कोई फ्रॉड हो। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम देख रहे थे मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो जैसे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें शो करता है कि हमारा जो कैपिटल है वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। तो उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। देन द अदर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एरर्स, थेफ्ट एंड फ्रॉड। एरर्स, थेफ्ट एंड फ्रॉड। तो जो भी अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, या फिर कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हों, तो वो एरर्स कर सकते हैं, अनजाने में कर सकते हैं, या फिर जानबूझकर भी कोई थेफ्ट या फिर फ्रॉड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इस चीज़ को मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए यूज़फुल होता है। Then error, thefts and frauds, then to know the progress of the business. बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे कि हम लोग का स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल कितना था, वर्किंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग कैपिटल कितना था, और ईयर एंड में हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल कितना है। ये चीज़ को हम अगर ये तो बेसिक सी चीज़ है, हम जान सकते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैपिटल कितना से कितना बढ़ा। तो प्रोग्रेस और भी बहुत सारे पैरामीटर्स से हम जान सकते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वही सारे पैरामीटर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि डेटास को प्रोवाइड करता है। प्रोग्रेस के बाद टू है वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन फॉर लीगल एंड टैक्स पर्पसेस। तो जो भी गवर्नमेंट जो है टैक्स चार्ज करती है, तो वो कंपनी के टोटल प्रॉफिट पर टैक्स चार्ज करती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का कितना प्रॉफिट है, कितना जो है टैक्स कट सकता है, एंड मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये तो पार्ट है, रेशनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी। और हम लोग जो अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ऑल टोटल सारे अकाउंटेंसी का पढ़ रहे हैं। सो रेशनल डिसीजन मेकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पर टोटल प्रॉफिट या लॉसेस या एक्सपेंसेस जो है, या फिर डिफरेंट जो अकाउंटिंग रेशियोज के हेल्प से रेशनल डिसीजन मेकिंग होते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं उनकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग होता है, स्पेशली वेयर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So here we come to the end of the objective. So let's quickly move towards the process or functions of accounting. Process or functions of accounting. So all this information is provided in the PDF. So just understand it now. So let's move towards the process or functions of accounting. So accounting में टोटल 8 functions या process involve होते हैं, उनके collection से लेकर के उनके communication तक, from collection to communication of the information. तो first यहाँ पर होता है identifying the business transactions and events. Business transactions and events जैसे कि वो सेल्स हुआ है या परचेज हुआ है, देन what is the debit and credit and which are the accounts involved. So this is all about identifying the transactions and events. What is the value which we are receiving or sacrificing, means हम लोग का कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना एक्सपेंस हो रहा है इन सब ट्रांजेक्शन्स को, या फिर कितना लॉस हो रहा है
इन सब ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. सो इट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स, identification of the transactions. Then measuring the identified transactions. तो ट्रांजेक्शन्स जो भी हमने किए हैं उसका हमारे कंट्री में, हमारे करेंसी में, जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन करेंसी में उसका क्या वैल्यू है उसको हमें मेजर करना है. इन इंडिया दिस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन रुपीस बिफोर रिकॉर्डिंग देम. देन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स. तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और मेजर कर लिया, तो अब हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. तो द फर्स्ट बुक इन विच वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज आवर जर्नल और डेली. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको जब फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो उसको जर्नल या डेली में रिकॉर्ड करेंगे. आफ्टर रिकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे, यानी कि ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर जो होंगे, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन जितने भी सेल्स हुए हैं, जितने भी परचेजेस हुए हैं, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी कि सेल्स हुआ तो उसमें आपका कितना कैश आया. जैसे कि हम लोग जब एंट्री पास करते हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सो हियर टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, सेल्स एंड कैश. तो व्हाइल वी आर क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स, तो हम सारे सेल्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे और सारे कैश जो हम लोग को रिसीव हुआ है या फिर हमने जितना कैश सेक्रीफाइस किया है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे. और वो रिकॉर्डिंग जो होता है वो होता है लेजर. जो हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, सेल्स लेजर एंड ऑल दिस, तो वो जो होता है वो लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं. आफ्टर क्लासिफिकेशन हम ट्रांजेक्शन्स को समराइज करेंगे. व्हाट इज समराइजिंग? समराइज करने का मतलब होता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में हम प्रेजेंट करेंगे, अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करेंगे. देन एनालाइज करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेंगे. सपोज अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अगर कम हुआ है प्रीवियस ईयर से तो उसका रीजन क्या है. अगर प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है. वी विल एनालाइज ऑल दिस थिंग्स. और एनालाइजिंग इज बेसिकली अबाउट डिफाइनिंग द रिलेशन between different items of financial statements. Defining a relation between different items of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पीएल अकाउंट को भी बोलते हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स को भी बोलते हैं. तो जैसे कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है, तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो रहा है, हमारे कंपनी में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, और उससे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या शो होता है, उस चीज को हम एनालाइज करेंगे. आफ्टर एनालिसिस वी विल इंटरप्रेट. जैसे कि सारा जो रिकॉर्डिंग या फिर जो समराइजिंग करना था हमने कर लिया, जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे हमने प्रिपेयर कर लिया. तो अब हम उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे. इट मींस वी विल डिस्क्राइब आवर ऑब्जर्वेशन. जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, तो यहाँ पर भी अकाउंटेंट जो होगा डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब दी ऑब्जर्वेशंस. एनालिसिस में जो होता है समराइजिंग में, समराइजिंग में जितने भी हम लोग के ट्रायल बैलेंस होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, पीएल अकाउंट होते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू. So after interpretation of the information we have to communicate the information to the end users. end users का मतलब जो भी internal users है या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हैं उन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को बस कलेक्ट करके रखना नहीं है, उस इंफॉर्मेशन का कुछ पर्पस भी है, उसको कुछ यूटिलाइज भी करना है. तो उस इंफॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना है किनको, टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, और वी कैन से दी एंड यूजर्स. और ये कम्युनिकेशन जो है बहुत तरीके से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस डायग्राम्स. जैसे कि मैनेजमेंट में जो भी पर्सन्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उन्होंने कॉमर्स पढ़ा हो, तो
हो सकता है कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस टेक्निकल लैंग्वेज में है उन्हें समझ ना आए, तो उस इंफॉर्मेशन को हमने एक अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करना है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है. So the initiative, imagination and innovative ability of the accountant are put to test in the process. तो communication के process में कौन सा जो member है management का और कौन से persons हैं वो किस तरह से उस information को समझेंगे, उस तरह से उस information को present करना है, तो ये एक creative काम है, तो accountant को उसे creativity से करना होगा. So let's move towards the ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंट्स के, जैसे कि अकाउंटिंग तो अब हमने पढ़ लिया, तो इसमें कितने सारे ब्रांचेस होते हैं. देयर आर मेनी ब्रांचेस, बट मेनली जो होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो अकाउंटेंसी के ब्रांचेस जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ा है यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पढ़ा, जैसे कि डेफिनेशन में जो पढ़ा था कि नॉन मॉनेटरी नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर वैल्यूज होते हैं, हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देन आ जाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कि जैसे कि सपोज आपकी फैक्ट्री में स्टील प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपकी एक फैक्ट्री है उसमें स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये होता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के लिए, देन रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर लेबर का कितना खर्चा हुआ, तो ये सब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी कुछ खर्चा आता है ना, कॉस्ट आता है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो भी प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग. देन कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जैसे कि बेसिकली हमने पढ़ा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो ये आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जहाँ पे कि जो मैनेजर्स होंगे वो इंफॉर्मेशन को, जब अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देगा उनके सामने, तो इसके बाद जो है अकाउंटेंट का काम खत्म हो जाता है. अकाउंटेंट को बस उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है और कम्युनिकेट करना है. उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करना है, उसका क्या मतलब कि कंक्लूजन निकालना है, वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम. देन आता है आपका और भी बहुत सारे अकाउंटिंग होते हैं, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. Social responsibility accounting. So according to the book, social responsibility is a part of accounting which is concerned with the contribution of a business enterprise to the society. तो एक बिजनेस एंटरप्राइज सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, जैसे कि TRL जो फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पे जो बहुत सारे कॉलोनीज बनाए गए हैं, तो जिस एरिया में कॉलोनीज बनाए हैं वहाँ पर रोड भी अच्छे से बिल्ड हो रहा है, बहुत सारे पार्क्स हैं, जिम्स हैं, तो ये क्या हुआ कि हमारा जो सोसाइटी है उसके इन्वायरमेंट को हेल्दी करने का एक तो इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रांग और बिल्डअप करने का एक तो इनिशिएटिव है. तो दिस इज व्हाट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस जो अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, उनका अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट आ रहा है, तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें. तो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या करेगा, बिजनेस इसे क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि उसको सोशली किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, फिर मेजरिंग द ऑल दिस थिंग्स एंड कम्युनिकेटिंग द ऑल द कंट्रीब्यूशन, यानी कि बिजनेस ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, जो कुछ भी किया है, उन सबको वो कम्युनिकेट करेगा. तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो बढ़ेगी. इसके अलावा होते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग. गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं विद दी कॉर्पोरेट बॉडीज, विद द नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज और विद अदर गवर्नमेंट, उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वी आर यूजिंग दी गवर्नमेंट अकाउंटिंग. देन टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स
अकाउंटिंग टैक्स पर्पसेस से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होता है उसे टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अभी हम इन चीज़ों को हमने जैसे रफली समझ लिया है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब की प्लेलिस्ट की मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जल्दी से ही स्टार्ट हो पाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली अब जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही स्टार्ट होता है। सारे जो जर्नल, बैलेंस शीट वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही हम बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो डेफिनेशन तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ लिया था। तो अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे इसको हम ब्रांचेस आप नोट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का पहला एडवांटेज होता है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से क्या होगा, ह्यूमन मेमोरी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि इस पर्सन के इस ट्रांजेक्शन को याद रखना है या फिर ये वो सारे ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली पूरा हमारे एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर किसी कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। और वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं, सिस्टमेटिक वे में भी होते हैं। तो फिर रिकॉर्ड्स अगर होंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा टैक्स असेसमेंट के लिए। टैक्स असेसमेंट जितना भी हम लोग के ऊपर लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की, यानी कि हम लोग को जितना पे करना है मतलब वो गवर्नमेंट का हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो हम लोग का कितना टैक्स असेसमेंट बढ़ रहा है उस चीज़ को हम यहाँ से जान सकते हैं। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे वो यहाँ पर भी हैं, जैसे कि प्रिवेंट्स फ्रॉड्स, ये भी एक हम लोग का एडवांटेज है। फ्रॉड्स हो गया या फिर एरर्स भी हो गया, मतलब कि जो ये अनजाने में हो जाता है एरर्स। देन बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस का नेटवर्क कितना है उस चीज़ को भी हम अकाउंटिंग से जान सकते हैं। यानी कि जैसे कि बिजनेस जब जब बंद हो जाता है तो उस टाइम हम लोग अगर बिजनेस किसी को सेल कर रहे हैं, कोई खरीद रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग का बिजनेस का नेटवर्क कितना है वो जानना रहता है। तो वो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जान सकते हैं। आफ्टर दैट हेल्प्स इन डेब्ट कलेक्शन। डेब्ट कलेक्शन यानी कि सपोज आपने किसी फ्रेंड को 1000 रुपीज डेब्ट दिया है तो आपको वो याद है क्योंकि वो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो एक ही ट्रांजेक्शन आपने किया है तो आपको याद है। बट अगर कोई दुकानदार है वो हर वक्त ट्रांजेक्शन करता रहता है तो ही विल नॉट रिमेम्बर कि उसने किस पर्सन को कितना डेब्ट दिया है, किस पर्सन से कितना डेब्ट लिया है, वो भी याद नहीं रहेगा। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंशन होता है सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, उनसे कितने अमाउंट हमें रिसीव करना है, अमाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं, तो हम जान सकते हैं कि हम लोग का टोटल डेब्ट कलेक्शन अमाउंट कितना है। हेल्पफुल इन प्लानिंग, तो हम लोग के पास अगर जैसे कि डेब्ट कलेक्शन का जैसे कि रिकॉर्ड्स अगर हम लोग के पास हुआ तो उस बेसिस पर हम प्लान कर सकते हैं कि हम किस तरह से डेब्ट कलेक्ट करेंगे। देन गुड्स के परचेज पर भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। गुड्स के मार्केटिंग, अगर हमको पता है कि हमारा गुड्स के प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना आ रहा है तो उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि हम लोग को पर प्राइस कितना सेल करना चाहिए, पर यूनिट कितने प्राइस में सेल करना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग जो होता है हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके जान सकते हैं। देन फंड रेजिंग बिकम्स इजी, जैसे कि कोई भी बिजनेस होंगे, कोई भी क्रेडिटर्स होंगे, आपको वो लोन देंगे। तो लोन किस बेसिस पर देंगे कि अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो आप उस लोन को रिपे कर पाओगे, वो यही सोच के देंगे। तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। तो फंड रेज करना इजी हो जाता है। फंड रेजिंग यानी कि लोन लेना या फिर जो भी हुआ उसको इजी होता है। फंड रेजिंग बिकम्स इजी।
देन एविडेंस इन द कोर्ट, सपोज आप पर कोई भी कुछ क्लेम होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से एक्वायर कर ली है, तो आपके पास अगर उस चीज़ का प्रूफ है कि आपने उस चीज़ को लीगली एक्वायर किया है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर प्रूफ है, तो आप उस चीज़ को कोर्ट में दिखा सकते हो. सो दैट विल बी एविडेंस इन दी कोर्ट. सो इट इज एक्ट्स एज एन एविडेंस इन दी कोर्ट. देन कंपैरिजन यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एक साल के जो हैं और प्रीवियस ईयर के जो हैं या फिर आज से 5 साल के पहले के हैं, तो उनको हम प्रिपेयर करके जान सकते हैं कि हम लोग का बिजनेस का ग्रोथ कितना हुआ है और हम लोग का बिजनेस किस रेट में ग्रो कर रहा है ये भी जान सकते हैं. तो एक ही बिजनेस का डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में भी हम जान सकते हैं कि क्या उसका प्रोग्रेस है, और दो बिजनेस का एक टाइम पीरियड में भी जान सकते हैं. सपोज आपने कोई टेक्सटाइल मिल बनाई है, आप वहाँ पर क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप किसी डिफरेंट टेक्सटाइल मिल से सपोज ये 2022 है, तो 2022 में आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे टेक्सटाइल मिल का कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप दोनों को कंपेयर करके जान सकते हो. कंपैरिजन तो यहाँ पर होता है इंटर फार्म कंपैरिजन, इंटर फार्म एंड इंट्रा फार्म. इंट्रा फार्म का मतलब है अपने ही फार्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना दो डिफरेंट ईयर्स का, जैसे कि अभी आपने 2021 और 2020 का कंपेयर किया. और इंटर फार्म कंपैरिजन का मतलब होता है, इंटर फार्म कंपैरिजन इज व्हाट, आप दो सेम टाइप के इंडस्ट्रीज या फार्म के प्रोग्रेस या ग्रोथ को कंपेयर करिए. आफ्टर कंपैरिजन असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो ये भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि हम प्रॉफिट असर्टेन प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी हम बैलेंस शीट से ही जानेंगे. देन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, limitations of accounting. What are the limitations? तो फर्स्ट लिमिटेशन ये होता है कि it permits alternative treatments. सपोज जैसे कि आपको अगर कोई भी मैथमेटिकल मैथ्स के एक ही क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं. सपोज आपको अगर एरिया निकालना है, तो आप उसके किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आप उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, और उसका जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा. बट अकाउंटिंग में अगर हम डिफरेंट मेथड्स को यूज कर देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो डिफर हो जाता है. तो इससे जो क्या होता है, कंपैरेबिलिटी जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो हो नहीं पाती है. जैसे कि अभी हमने बात किया कि कंपैरिजन करना है, इंटर फार्म और इंट्रा फार्म का हमें कंपैरिजन करना है. तो अगर हम डिफरेंट मेथड्स को यूज कर रहे हैं, अगर दूसरे स्टील इंडस्ट्री डिफरेंट मेथड को यूज कर रही है, हमने डिफरेंट मेथड को यूज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, तो वो जो रिजल्ट्स होंगे ना वो कंपेयर नहीं हो पाएंगे. So there will be no comparability because of different methods of treatment. Different methods of preparation भी हम बोल सकते हैं, different methods of preparation और treatment. Then influence by personal judgment, जैसे कि हम पढ़ते हैं communication हो गया, interpretation हो गया, तो ये सब जो होता है ये accountant का काम रहता है. तो accountant is a human और उसका खुद का क्रिएटिविटी होता है. So all the interpretation and analysis will differ from accountant to accountant. एक accountant प्रॉफिट का कुछ अदर रीजन निकालेगा और एक accountant प्रॉफिट का कुछ अदर रीजन निकालेगा. तो ये जो होता है वहाँ पर बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं. So it is influenced by personal judgments. Then ignores importance of non-monetary information. So the non-monetary information is not considered. Non-monetary information is not considered.
नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके कंपनी के स्टाफ कैसे हैं, आपके कंपनी के स्टाफ के बीच का कोरिलेशन कैसा है, ये सब इंफॉर्मेशन भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं किया जा सकता, जबकि ये भी रीजंस हो सकते हैं आपकी कंपनी के ग्रोथ में या फिर डिक्लाइन में, ये सब रीजंस हो सकते हैं, बट इनको कंसिडर नहीं किया जाता। डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, तो टाइमली जैसे कि ईयर एंड में हम लोग का बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, पीएल अकाउंट सब प्रिपेयर होता है, तो अगर हम लोग को 6 मंथ्स, बिटवीन 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग को एकदम फटाफट से नहीं मिल सकता। देन डज नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस, तो ये डिटेल जो एनालिसिस होता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है, तो यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस नहीं मिल सकते, यहाँ पर बस रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जैसे कि अभी 2022 है, तो हम 2022 का जो वर्थ है हमारे बिजनेस का 2022 में हम वो नहीं जान सकते। सॉरी, मैंने मिस्टेक से बोल दिया था कि 2022 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंपेयर करेंगे। एक्चुअली हमारे किसी भी बिजनेस के पास अगर अभी 2022 चल रहा है तो उसी बिजनेस के पास 2021 का बैलेंस शीट होगा, पर अगर हम 2022 में वर्क कर रहे हैं तो हमें इस ईयर का बैलेंस शीट या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिल सकता। तो डज नॉट प्रोवाइड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं होता है यहाँ पे। बिजनेस इज नो, यहाँ पे लिख लेते हैं डज नॉट प्रोवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। देन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, तो जो अकाउंटेंट डेटा को प्रिपेयर करेगा, यहाँ पर होता है थेफ्ट्स और एरर्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी हो सकता है कि वहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है थ्रू दी बाय दी अकाउंटेंट, अपनी खुद के बेनिफिट के लिए अकाउंटेंट डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट कम दिखा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको ना शो करके वो अपनी पॉकेट में उस प्रॉफिट को ले जा सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी ये मैनिपुलेशन हो सकता है। जैसे कि टैक्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर चेक करने के लिए ये यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकता है। सो दिस वाज द लास्ट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि हम लोग को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एंड यूजर्स तक ले जाना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हु आर द एंड यूजर्स हियर। सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर के जो भी यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, वो है हमारे इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट है, या फिर जो टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, या फिर अदर गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं जैसे कि आरबीआई हो गया, या फिर पब्लिक या कस्टमर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में हम लोग जो मैनेजमेंट आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं या फिर मिडिल लेवल, लोअर लेवल भी होते हैं, ऑल दोज आर दी इंटरनल यूजर्स। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल यूजर्स का। एक्सटर्नल यूजर्स क्लासिफाइड इनटू, एक्सटर्नल यूजर्स के यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है। दैट इज व्हाट users who are directly concerned, users directly concerned and users indirectly concerned. Users who are directly concerned with information are the creditors, investors, employees, tax authorities, consumers, foreign entrepreneurs।
these are the users who are directly concerned, जिन्हें डायरेक्टली इन इंफॉर्मेशन से कुछ काम करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, उनको दे वांट टू नो व्हाट इज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कि अगर क्रेडिट, उन्होंने आपको जितना भी अमाउंट क्रेडिट में दिया है उस अमाउंट को वो आपसे कब तक रिकवर कर पाएंगे, या फिर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी आपके बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न उन्हें कितने पीरियड में मिलेगा, उस चीज़ को उन्हें जानना है। तो उन्हें डायरेक्टली आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से काम है। सो दे आर दी डायरेक्ट यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एंड यूजर्स इनडायरेक्टली कंसर्न, जैसे कि रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, पब्लिक हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्हें आपके इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, जैसे कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे हो गया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह, ये सब हुए। तो इन्हें आपके इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, इन्हें खुद का कुछ मतलब कि ये इनका काम है कि वो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे तक कम्युनिकेट करें, पर इनका खुद का यहाँ पर पर्पस नहीं है, वो आपके इंफॉर्मेशन से यहाँ पर खुद कुछ पर्पस इनका नहीं है। सो दे आर दी इनडायरेक्ट यूजर्स, बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जो रिसर्चर्स हैं, यानी कि अगर आपका बिजनेस बहुत ही डेवलप्ड वन है तो रिसर्चर्स एनालाइज करेंगे कि आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या है, पॉलिसीज क्या है, वर्किंग टेक्निक्स क्या है। तो रिसर्चर्स के लिए भी ये एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। देन पब्लिक हो गए, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गए, दे विल ऑल्सो want to know about the financial position of the business, but वो direct users नहीं है। Then let's move towards the qualitative characteristics of accounting information. Qualitative क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम नॉन फाइनेंशियल नेचर के इंफॉर्मेशन को ही इंक्लूड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर का इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पर उसका कुछ काम नहीं है, बट स्टिल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसका भी कुछ यहाँ पर क्वालिटी होना चाहिए। तो मतलब कि इंफॉर्मेशन का कुछ क्वालिटी होगा, कुछ उसका मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तभी हम उस इंफॉर्मेशन को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वालिटी हियर इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि जिस इंफॉर्मेशन पर हम डिपेंडेंट रह सकते हैं, जिस इंफॉर्मेशन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को भरोसा कर, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन पर बेस होके हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड होगा, वो फिर कितने एजेंसीज को कम्युनिकेट होंगी, उसके बेसिस पर कितने सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो अगर वो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, तो फिर वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीनिंग है वो है ट्रस्ट वर्दीनेस। इंफॉर्मेशन जो है, जिस भी सोर्स से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स जो है ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सेल्स और परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो है सफिशिएंट वाउचर्स होने चाहिए, ताकि जो आपका इंफॉर्मेशन है उसके लिए कोई प्रूफ हो, कोई रिलायबिलिटी हो। ट्रस्ट वर्दीनेस के बाद आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस। तो फेथफुल प्रेजेंटेशन यही है कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उस चीज का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। फेथफुल प्रेजेंटेशन। देन न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी यानी कि इंफॉर्मेशन जो है बस मतलब कि वो एकदम जो सच है वही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक साइड को इंफॉर्मेशन मतलब ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए, वहाँ पर न्यूट्रलिटी होना चाहिए। देन फ्री फ्रॉम एनी, दैट शुड बी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि देन दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। अगर फ्री फ्रॉम बायस होगा तभी इंफॉर्मेशन रिलायबल होगा। देन हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होता है रेलिवेंस।
relevance of the information. So according to international accounting standards, what is relevance when it influences the economic decisions of users? As per IASB, accounting International Accounting Standards Board, as per IASB, what is relevance? It influences the economic decision of users by evaluating their past, present और future events. आपका इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को बेस करके ही जो यूजर्स हैं, जो जैसे कि मैनेजमेंट हो गया वगैरह वगैरह, ये सारे डिसीजंस लेंगे, तो आपका इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंस होना चाहिए. इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द users. Influences the economic decisions. Then understandability. आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में तो आप उसे प्रेजेंट करेंगे ही, but that should be in a common language also, so that it will be understood by the management and other users of the information. Then comparability. Comparability of the information means information जो है, suppose financial information should be presented together with the corresponding information of the preceding periods. जैसे कि हम लोग को दो फार्म्स का अगर हमें कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो किस बेसिस पर प्रिपेयर किए गए हैं. जैसे कि एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है. तो अगर दोनों फार्म्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर प्रिपेयर किए गए हैं, तो कंपेयर किया जा सकता है. या फिर हम हमारे ही फार्म के दो पीरियड्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अगर कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया गया है, तो हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो अकाउंट्स का प्रिपरेशन का जो मेथड्स है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. So here we come to the end of the 4 characteristics or qualitative characteristics of accounting information. So यहाँ पर हमने जो कुछ भी पढ़ा, जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. वहाँ पर अकाउंटिंग्स के साइकिल हैं, फिर अकाउंटिंग का स्कोप कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये क्लास तो बहुत लंबा हो गया, सो वी विल रीड ऑल द अदर. सो आज का हमारा क्लास था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. लेट्स गेट इट ब्रीफली. तो अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बहुत सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, हम आगे की क्लास में इसी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे. और आप कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं इस चैनल में उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी विथ वीडियो लेक्चर्स एंड PDFs एंड नोट्स as much as possible. So please subscribe to the channel, share it, like it. So it is very important for my motivation. Thank you.